Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and doing well. Today we are going to talk about another important topic, and that is uh, forms of governments. So we have in today's topics we have two forms of governments. One is called parliamentary form of government and the other is called presidential form of government, and we are going to discuss both of them in detail. Both of the topics are highly crucial for understanding the different systems prevailing in the world in different countries, right? So some of the countries carry parliamentary form of government, and some of the countries in the world carry presidential form of government. So in understanding today's topic, you will understand the forms of governments of different governments, different states and different nations. For example, in USA, that is presidential form of government, and in Pakistan, it is parliamentary form of government, or UK or India, these are parliamentary form of governments. So what are the characteristics of the parliamentary form of governments and what are the characteristics of the presidential form of government? We will be discovering all these things in today's lecture. In this regard, today's lecture is going to be very meaningful because you are going to do the comparison and contrast between both the systems, and this comparison and contrast is highly needed in political science paper too, because there will be question on the differences and the similarities of the two constitutions of two countries. For example, the examiner might ask you about the presidential form of government of USA and the parliamentary form of government of the UK. Are the president of the USA are the prime minister of the UK, and then the powers of them with the comparison and contrast, and then you have to draw the comparison and contrast. So if you understand the basics of these two topics, you might be able to write on every parliamentary form of government of every country, and if you understand presidential form of government and the basics of this topic, you may be able to understand every presidential form of government. So in this regard, this lecture is going to help you a lot if you are new to the constitutions, and if you are really new to the constitutional law and political science. So this class will give you a lot meaningful benefits, because you are going to learn the basics of parliamentary form of government and presidential form of government. So let's begin. We are going to talk about the parliamentary form of government first. Kindly invite your friends, share this lecture in different places, so that those who have not received the notification, they receive the notification instantly and they join us, and they do not miss such a crucial class. Some of the students with lazy mentality or Pakistani mentality, whatever you may call it, they will not come to the class until you grab him or her by the hand and bring him or her to the class. They are lazy. Even they do not think about themselves, right? And the best quality is that some of the members are highly responsible, and I think that responsible people deserve to be bureaucrat, because if they care about themselves, if they are responsible, so they can be they'll be even responsible towards others as well, and they are the true leaders. They can lead by examples. So only a few members I see that, including like Farhan Dazeeb and Huma Khan, who are the CRs
of our class as well. They are active, they invite the members, they share the lectures. And in today's class, Ijaz Ahmed is very active in commenting, Maha Areen. So these are some of the few students whose comments I can see, I can read. So I get happy, right? And this is something true from the heart, I say. I get happy when I see responsible students and responsive as well. Responsive means that they respond to whatever task I assign. If I give them test, they do it. If I instruct them to invite members, they invite. If I tell them to share the lecture, they share it. If I tell them to comment, they comment. So this is something amazing. And Huma Khan, thank you. Okay, very good. Mahareen, Ijaz Ahmed. Okay, you guys are really amazing, right? So let's move on to our topic, and that is parliamentary form of government. So in parliamentary form of government, it is a form of government, or it is a system of government in which exists an intimate relationship between the executive and legislative. इसमें क्या होता है? Legislative मतलब parliament और executive cabinet दोनों का एक close intimate relation होता है. Close relation. They are not independent of each other. They are responsible to each other. Intimate relationship का मतलब ये है कि एक तरफ पार्लियामेंट होता है, कानून साज लेजिस्लेटिव इदारा होता है, दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव होता है, और दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है, इंटरलिंक्ड है, इंटरवूवन है. सही, ये सारी क्वालिटीज इसमें होती हैं. अब ये क्यों है, ये भी आप लोगों को बताता हूं. ये इसलिए है क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव होता है वो आता ही पार्लियामेंट से है, मेजॉरिटी पार्टी से आता है. प्राइम मिनिस्टर हो गया, सदर हो गया, साथ में बाकी जो मिनिस्टीरियल स्टाफ होता है जिसको हम कैबिनेट कहते हैं, ये तमाम के तमाम लोग पार्लियामेंट से ही आते हैं, और ये तमाम के तमाम लोग पार्लियामेंट को जवाबदेह भी होते हैं. तो इस वजह से जो पार्लियामेंट होता है और इसके साथ जो एग्जीक्यूटिव होता है, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं, और यही चीज फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉर्म करती है, जिसमें सुप्रीमेसी जो है पार्लियामेंट के पास हो. पार्लियामेंट इज द सुप्रीम, पार्लियामेंट हैज द सुप्रीम अथॉरिटी और सॉवरेनिटी. और वजह भी बता दिया, क्योंकि हम जो आम लोग हैं वो अपने नुमाइंदे पार्लियामेंट भेजते हैं, एक सुप्रीम इदारा है, हम वहाँ पर अपने नुमाइंदे बिठा देते हैं और हम उनको कहते हैं कि आप अपनी हुकूमत चलाएं. फिर यही लोग फिर अपने से कुछ लोगों को उठाते हैं, एक शख्स को प्राइम मिनिस्टर बनाता है, फिर प्राइम मिनिस्टर अपने लिए एक कैबिनेट बनाता है, उन्हीं में से जो है अपने चंद एक्सपीरियंस लोग या चंद पसंदीदा लोग, उसी पार्टी के लोग जो है उसको उठाता है और कैबिनेट एक टीम तैयार करता है, और फिर वही टीम जो है पूरा मुल्क चलाता है. अच्छा, ये तो हो गया कैबिनेट का कमाल. इसको हम कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें तमाम के तमाम इख्तियारात जो असल इख्तियारात हैं वो कैबिनेट के पास होते हैं. ठीक है, उस पर आगे चलकर बात भी करूंगा. अच्छा, एक और भी खसूसियत पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बता दूं, और वो है कि इसमें एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, दो एग्जीक्यूटिव होते हैं. एक एग्जीक्यूटिव सदर होता है और दूसरा एग्जीक्यूटिव जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है. अब जो एग्जीक्यूटिव है उसमें एक रियल एग्जीक्यूटिव है और एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, टिटुलर एग्जीक्यूटिव है, बराइनाम एग्जीक्यूटिव है. जो सदर होता है उसके पास इख्तियारात नहीं होते, रियल पावर्स उसके पास नहीं होते. जो प्राइम मिनिस्टर होता है और उसका कैबिनेट होता है उसके पास रियल पावर्स होते हैं. सही. अब मैं मिसाल दूंगा, पाकिस्तान की भी मिसाल दूंगा और यूके की गवर्नमेंट की भी मिसाल दूंगा. चलो पहले लेते हैं पाकिस्तान की मिसाल. अब पाकिस्तान में जो सदर पाकिस्तान है वो सिर्फ और सिर्फ बराए नाम जो है सदर बना हुआ है. वो सिर्फ और सिर्फ टीवी पर एक दफ़ा आया तो लोगों को कह रहा था कि हाउ टू ब्रश योर टीथ. ये उसका एक फंक्शन था कि जनाब दांतों की हिफाजत करें, क्योंकि वो खुद डेंटिस्ट है.
तो इसलिए उसने लोगों को बहुत बड़ी बात बता दी। सही, जो रियल फैसले लेता है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लेता है। ठीक है, इसी तरह पाकिस्तान, इंडिया जैसे मुल्क में तो सदर होता है और यूके में सदर नहीं है। यूके में सदर की बजाय मोनार्क है, किंग है और क्वीन है, और किंग और क्वीन भी जो है टिटुलर हेड है, मतलब बराइनाम हेड है, उसके पास रियल पावर्स, इख्तियारात नहीं होते। अच्छा, अब आते हैं 4 चीज़ें जो है मैंने आप लोगों को अच्छा इसमें एक और चीज़ भी बता दूँ। एक जो है प्राइम मिनिस्टर होता है, उसको हम कहते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और दूसरा जो हमारे पास होता है वो है सदर। सो सदर मीन्स हेड ऑफ द स्टेट। तो दोनों अलग हो गए, हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ द स्टेट। अब आते हैं 4 चीज़ें मैंने बता दी कि वो अहम होती हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, जिसको अंडरस्टैंड करने के लिए। पहली चीज़ है, आप लोगों की किताब में भी लिखा है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के दरमियान क्लोज रिलेशन होना। दूसरा जो है, कैबिनेट इज फॉर्म बाय द पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट इज द सुप्रीम ऑर्गन। के कैबिनेट जो है बनता है पार्लियामेंट से और पार्लियामेंट ही सुप्रीम ऑर्गन है। अगरचे अब जो है इस दौर में कैबिनेट ज़्यादा पावरफुल बन चुका है, इवन पार्लियामेंट से भी असल में प्रैक्टिस में कैबिनेट ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। लेकिन किताबों में यही लिखा जाता है कि जो सुपीरियर इदारा है वो पार्लियामेंट है। तीसरा, देयर आर 2 एग्जीक्यूटिव्स, 2 एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, ऑलरेडी बता दिया। एक हेड ऑफ द स्टेट होता है और एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है और सदर जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है। और चौथा जो है, कैबिनेट इज रिस्पॉन्सिबल बिफोर द लेजिस्लेचर, और कैबिनेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है पार्लियामेंट को। अच्छा, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो और भी, ये 4 चीज़ें तो उसकी डिफिनीशन में ही आ गई। अब आते हैं चंद चीज़ें ऐसी है कि वहाँ पर नहीं है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। सबसे पहले वहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर्स की जो थ्योरी है जो मॉन्टेस्क्यू ने दी थी वो नहीं है। वहाँ पर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इंटीमेट रिलेशन में जकड़े हुए हैं, वो अलग अलग सेपरेट नहीं है, ये बात जहन में रखें। ठीक है, सो द एब्सेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। इसी तरह मेन रोल ऑफ द लोअर हाउस, जो लोअर हाउस होता है, इंग्लैंड में लोअर हाउस को कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, जो, और पाकिस्तान में लोअर हाउस को कहते हैं नेशनल असम्बली। ठीक है, तो नेशनल असम्बली के पास ही रियल पावर्स होते हैं। जैसे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। पाकिस्तान में जो लोअर हाउस है हम उसको कहते हैं नेशनल असम्बली, और जो अपर हाउस है हम उसको कहते हैं सेनेट। तो जो लोअर हाउस होता है वो हमेशा से ज़्यादा पावरफुल होता है। और वजह क्या है? वजह यह है कि यहाँ पर मेजॉरिटी पार्टी भी बैठती हैं और उसी मेजॉरिटी पार्टी का फिर प्राइम मिनिस्टर भी आता है और उसी मेजॉरिटी पार्टी से मिनिस्टीरियल स्टाफ भी बनता है। तो वो मेजॉरिटी पर जो कैबिनेट बनाया जाता है, तो जाहिर बात है वो जिस हाउस से इतना पावरफुल कैबिनेट बने तो वो ज़्यादा पावरफुल होगा। तो बड़े बड़े फैसले जो लिए जाते हैं वो हाउस ऑफ लोअर हाउस से ही लिए जाते हैं और कैबिनेट के ज़रिए। ठीक है, अब आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेजिस्लेचर। जो कैबिनेट होता है, जो प्राइम मिनिस्टर है या जो उसका कैबिनेट है, मिनिस्टीरियल स्टाफ है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। वो पार्लियामेंट में आते भी हैं, पार्लियामेंट में बैठते भी हैं और जो भी पॉलिसीज़ वो बनाते हैं वो पार्लियामेंट में शेयर भी करते हैं और उस पर जो है पूरा एक डिबेट सिस्टम है, वो डिबेट चलता रहता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एक और टर्म है, ये भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है। एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब एक मिनिस्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है टू द डिपार्टमेंट वर्किंग अंडर हिज अथॉरिटी। ठीक है, अब एक मिनिस्टर ऑफ हेल्थ हैं
तो उसके मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के नीचे जो डिपार्टमेंट काम करते हैं तो वो उसकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सिर्फ उसी का जिम्मेदार है। एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक बड़ी पॉलिसी बनाई जाती है और वो पॉलिसी जो है कैबिनेट की तरफ से आती है। तो उसमें एक शख्स भी जो है अगर वो गलत साबित होती हैं तो फिर जो है पूरा वो उठता तो नहीं कहूँगा कि उसकी जो गलती है पूरे सब कैबिनेट पर आएगी। और इवन इस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये भी है कि अगर एक शख्स ने भी गलती की, मतलब ऐसी गलती जिसके ज़रिए आप हुकूमत ख़त्म कर सकते हैं, तो फिर एक शख्स की वजह से, एक मिनिस्ट्री की गलती की वजह से पूरी जो गवर्नमेंट है वो भी जा सकती हैं। इसकी मिसाल मैं ख़ास तौर पर देता हूँ प्राइम मिनिस्टर की। अगर प्राइम मिनिस्टर एक शख्स है और उस पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, अदम एतमाद का वोट आया और वो उसको हटा दिया गया, तो बस फिर हुकूमत चली गई, फिर सारा का सारा कैबिनेट, फिर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं हर एक मिनिस्टर जाएगा, ठीक है, और हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है। अच्छा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो लीडरशिप ऑफ द गवर्नमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर करता है और एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड हिम, और हर एक चीज़ उसके इर्द गिर्द ही घूमती फिरती है, ठीक है। और इसके लिए एक टर्म यूज़ होता है, हम उसको कहते हैं प्रीमिस इंटर पारिस। इट मीन्स दैट फर्स्ट अमंग इक्वल, के तमाम तो बराबर है, मतलब मिनिस्टर्स वगैरह, और जो प्राइम मिनिस्टर है ही इज फर्स्ट अमंग इक्वल, तो उसके पास ही सब, उसका फैसला ही, फिर इवन कैबिनेट में ये मीटिंग्स वगैरह भी बुलाए जाते हैं, मीटिंग्स भी होते हैं, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर कहता है फिर वही होता है और उसका डिसीजन ही फाइनल होता है। साथ में एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्ट्रांग अपोजिशन, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक स्ट्रांग अपोजिशन भी होता है। एक पार्टी जाती है तो हुकूमत करती है और दूसरी पार्टी उसके अपोजिट में आ जाती है, हम उसको अपोजिशन कहते हैं, और वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज भी करती हैं, और उसके अगर गलत पॉलिसियाँ हैं तो लोगों को बताती हैं, और उसकी जो छोटी छोटी खामियां हैं वो भी हाईलाइट करती हैं, और उसको इतना प्रेशराइज करती हैं ताकि वो रिस्पॉन्सिबली जो है हुकूमत चला सके, और उसकी एफिशिएंसी जो है बढ़ाने में भी अपोजिशन का एक अहम किरदार होता है। अब जब हम पाकिस्तान को देखते हैं तो यहाँ पर अपोजिशन थोड़ा सा वीक होता है, ठीक है, और यहाँ पर जो प्योर डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है वो भी नहीं है। तो इसलिए हम अगर यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की ये सारी बातें पढ़ते हैं तो ये सिर्फ किताबी बातें हैं। रियल में ये ऐसा सिस्टम आना अगर आ गया तो पाकिस्तान इस जगह से लेकर फिर उस जगह तक पहुंच जाएगा, मतलब एक प्योर डेमोक्रेसी भी बन जाएगी और तरक्की भी करेगा। एनी हाउ, यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो भी मजबूर होता है वो बहुत ज़्यादा फैसलों में, ठीक है, पार्टी से भी मजबूर होता है, और यहाँ पर उस इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि वो सेलेक्टेड वज़ीर आज़म है। एनी हाउ, आप पेपर में ये लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन आप अगर मिलिट्री रोल इन द गवर्नमेंट इस्तेमाल करें या मिलिट्री रोल इन द पॉलिटिक्स तो आप ये अल्फाज फिर इस्तेमाल कर सकते हैं, और एग्जामिनर आपको ब्लेम भी नहीं करेगा, क्योंकि ये बातें आप अखबारों में भी पढ़ते हैं, बुक्स में भी पढ़ते हैं, और सियासतदानों से भी सुनते हैं, इवन बाहर की जो मीडिया है वहाँ से भी सुनते हैं। लेकिन इसको आपने एज अ पॉजिटिव टर्मिनोलॉजी के तौर पर इस्तेमाल करना है, नेगेटिव नहीं जाना कि पाकिस्तान बिल्कुल तबाह हो गया और बर्बाद है और ये मिलिट्री जालिम है और इसने जो है अपने पपेट प्राइम मिनिस्टर को बिठाया है। जैसे आजकल के लोग जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर को पपेट प्राइम मिनिस्टर को क्या क्या नहीं, ये लैंग्वेज आप लोग इस्तेमाल ना करें। आप ये कह सकते हैं कि देयर इज़ अ रोल, एन एक्टिव रोल ऑफ द मिलिट्री इन द पॉलिटिक्स, ठीक है। तो वो अपना एक काम है चलाते हैं, और इवन अमूमन हर एक मुल्क में ऐसा होता है कि डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी जो है ये मिलिट्री या डिफेंस ही कंट्रोल करती है। अच्छा, स्ट्रांग अपोजिशन की बात आ गई तो पाकिस्तान के साथ भी थोड़ी सी इसकी रेलेवेंस दिखा दी कि यहाँ पर अपोजिशन थोड़ा सा वीक है। एनी हाउ, फिर भी अच्छा है, ना होने से कुछ तो है।
कैबिनेट डिक्टेटरशिप, के कैबिनेट की डिक्टेटरशिप होती है, मतलब कैबिनेट ही सब कुछ करता है, तमाम के तमाम फैसले कैबिनेट करता है, वहाँ से सब कुछ डिसाइड भी होता है, प्राइम मिनिस्टर ही सब कुछ करता है। तो इसको हम फिर कहते हैं कि कैबिनेट डिक्टेटरशिप। ठीक है, जो लोअर हाउस होता है उसमें छोटे छोटे मसाइल जो है डिस्कस हो जाते हैं और बाज़ दफ़ा कैबिनेट में फैसले लिए भी जाते हैं, वो अप्लाई भी हो जाते हैं और पार्लियामेंट को खबर तक नहीं होती और फिर अपोजिशन चिल्लाती रहती है पाकिस्तान जैसे मुल्क में कि IMF के साथ क्या मुआहदे किए, अब हमें भी बताओ, कौम को बताओ, कौम को आगाह कर दो, ये कर्जा किन शराइत पर लिया गया, ये वगैरह। फिर अपोजिशन आप लोगों ने सुना होगा। एनी हाउ इसको हम डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट कहते हैं कि कैबिनेट जो है अपने फैसले लेने में आज़ाद भी हैं और वो इसको अप्लाई करने में भी आज़ाद हैं, और अगर वो एक फ़ैसला ले ले और पार्लियामेंट को रुजू भी ना करें तब भी कर सकते हैं। ठीक है, और पार्लियामेंट में चूंकि वो मेजॉरिटी पार्टी से ही होते हैं, तो अगर कोई कानून साजी करनी है और उसके पास मेजॉरिटी है तो वो कानून साजी भी आसानी से कर सकते हैं। पाकिस्तान में फिर भी खैर थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टी सिस्टम है वो मल्टी पार्टी सिस्टम है, और साथ में जब गवर्नमेंट आती है तो वो भी एक पार्टी की गवर्नमेंट नहीं होती, हम उसको कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं या मखलूत हुकूमत कहते हैं। तो मखलूत हुकूमत में कई पार्टियां मिलकर एक हुकूमत बनाती हैं, तो इसमें जो है थोड़े से डेडलॉक्स वगैरह या चीज़ें जो है लेट हो जाती हैं। एनी हाउ ये सारी बातें जो है इम्पोर्टेंट थी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिहाज से, और यही सारी बातें फिर हम यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ते हैं, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ते हैं, यही सारी बातें हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ते हैं, और जिधर भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा यही बातें वहाँ पर होंगी। एक आध ऊंच नीच हो सकती है। एनी हाउ एज अ होल ये टॉपिक हर एक जगह पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा पेपर के हवाले से भी बता दूं कि पेपर में अगर आप लोगों ने इस पर बात करनी है कि आपसे पूछा जाए कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छा है या बुरा है, इस पर बात करें, तो फिर यही सारी बातें लिखें और अपनी कमेंट्री में करें कि इसमें जो जो बातें आपको पसंद आती हैं बस वही दोबारा दोहराएं और उसको कहें कि मुझे ये पसंद है, इसलिए पसंद है कि इसमें ये बातें हैं। मिसाल के तौर पर अपोजिशन होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, प्राइम मिनिस्टर के पास भी जो है इख्तियारात होते हैं, और ये एक रिस्पॉन्सिबल हुकूमत होती है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इज़ अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर वगैरह वगैरह। अच्छा सर, प्लीज़ एक्सप्लेन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अदम एतमाद का वोट। ये वो वोट होता है जब एक शख्स के खिलाफ पास हो, ठीक है, और पार्लियामेंट से होता है, और ये अदम एतमाद का वोट है, मतलब एतमाद ख़त्म हो जाए जब एक हाउस का अपने ही प्राइम मिनिस्टर पर या एक मिनिस्टर पर, ठीक है, तो फिर लोग जाते हैं उसको हटाने का। एक तरीका ये है कि करे, मेजॉरिटी उसके लिए चाहिए होती है, ख़ास मेजॉरिटी, और उस मेजॉरिटी के तहत अगर वो साबित हो जाता है, सारे लोग उसके खिलाफ वोट दे देते हैं, तो वो फिर वही प्राइम मिनिस्टर चलता बनता है। इसकी मिसाल में अभी आपको दूं कि प्राइम मिनिस्टर के पार्टी ने जैसे ही सेनेट का इलेक्शन हारा पीपल्स पार्टी के हाथों, तब जो है प्राइम मिनिस्टर खुद आए और उसने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया कि मेरे लोग मुझ पर कॉन्फिडेंस करते हैं। तो फिर सब ने तकरीबन 180 लोग थे और 178 वोट प्राइम मिनिस्टर ने हासिल किए, और वो आज तक प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, और उससे जो उसमें कोई भी किसी भी शख्स मतलब जो पोजीशन से था वो था ही नहीं। अच्छा, इंटरप्शन थी, बिल्कुल ये यहाँ से थी, अभी भी अगर है तो मुझे बताएं। अच्छा सुलेमान, इफ़ द रोल ऑफ कैबिनेट एज अ डिक्टेटरशिप देन हाउ द लोअर हाउस इज मोर पावर। लोअर हाउस इज मोर पावरफुल इन थ्योरी, इन प्रैक्टिस कैबिनेट इज पावरफुल। तो दो चीज़ें आप जहन में रखें, जब भी आपने पेपर में भी लिखना है तो जहन में दो कंसेप्ट, एक थियरी है और दूसरा प्रैक्टिस है। जब लिखना है तो आप ये लिखें कि इन थियरी लोअर हाउस इज मोर पावरफुल, बट इन प्रैक्टिस nowadays cabinet has got more power, real powers, and real powers are exercised by the cabinet. All the policies are carried out by the cabinet, which is led by the prime minister and his ministerial staff.
तब जाकर जो है आप कहें कि रियल पावर्स जो है कैबिनेट के पास अब आ चुके हैं। इस दौर में इंग्लैंड में पहले जो पावर्स थे वो लोअर हाउस के पास थे, चलते 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 कैबिनेट की डिक्टेटरशिप बन गई। अब प्राइम मिनिस्टर और उसका स्टाफ जो चाहे कर सकता है, लोअर हाउस उसमें मुदाखलत नहीं कर सकता। और इसकी वजह यह है कि कैबिनेट जो है, कैबिनेट कैन डिसॉल्व द लोअर हाउस, वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। अब आज अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये कहे कि मैं अपने असेंबली को ख़त्म करना चाहता हूँ, तो वो सदर को कह देगा और सदर उसको डिसॉल्व कर देगा। तो ये क्या है? ये डिक्टेटरशिप है। सारी असेंबली की जो फ्यूचर है वो एक शख्स के हाथ में होती हैं। तो हम इसको कहते हैं डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट। तो ये आपका क्वेश्चन वैलिड है, लेकिन इसमें जब बात आती है तो प्रैक्टिस और थ्योरी की आती है। अच्छा, अब आते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, इसको थोड़ा सा इजी करते हैं, और इजी है भी, इतना मुश्किल नहीं है, और सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसमें जो पावर्स होते हैं प्रेसिडेंट के पास होते हैं। इसमें जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होता है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज लेड बाय द प्रेसिडेंट। एक बात, तमाम के तमाम पावर्स प्रेसिडेंट के पास हो गए। खूबसूरत बात यह है कि प्रेसिडेंट जो है इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज द हेड ऑफ द स्टेट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट अलग है और हेड ऑफ द स्टेट अलग है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट दोनों एक ही शख्स होता है, और हम उसको कहते हैं प्रेसिडेंट। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जो बाइडेन है, इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप वगैरह। ठीक है, तो यही दो बातें आप जहन में रखें कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर एन एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज लेड बाय अ प्रेसिडेंट हु सर्व्स एज बोथ हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, और जो सबसे ज्यादा इख्तियारात होते हैं वो होते भी प्रेसिडेंट के पास हैं। अच्छा, इसके मजीद चीज़ें बता दूं और साथ में एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ कंपेयर भी करूं, तो वो ये हैं जो सदर, चलो सेपरेशन ऑफ पावर्स को लेते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर्स थ्योरी यहाँ पर है। 3 ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। तीनों अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू ईच अदर, दे वर्क इंडिपेंडेंटली। ठीक है, इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है वो नहीं होती। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है, वहां पर ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ अच्छा, दूसरी बात जो है इसमें, इन प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। साथ में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ इसको कंपेयर करें। प्रॉब्लम जी नेटवर्क में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो काइंडली आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करें, खुद ही ठीक होता है। साथ में अब आते हैं कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट एक होता है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम में हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट 2 शख्स होते हैं, अलग अलग होते हैं। इन अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम प्रेसिडेंट इंजॉयज रियल पावर्स। प्रेसिडेंट जो होता है उसके पास रियल पावर्स होते हैं। इसी तरह अगर सदर पाकिस्तान ले ले, प्रेसिडेंट तो हैं, या किंग ऑफ इंग्लैंड ले ले, वो तो किंग है, लेकिन रियल पावर्स उसके पास नहीं होते। इसी तरह सदर जब आता है तो फिक्स टेन्योर के साथ आता है। जैसे अमेरिका में 4 साल के लिए आता है तो वो फिक्स होता है, और कोई शख्स उसको 4 साल तक हटा नहीं सकता। ये बात बड़ी जबरदस्त है। तो इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोर स्टेबल। ये इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा है कि जब एक शख्स, एक हुकूमत बन गई, एक शख्स सदर बन गया, चाहे अच्छा है या बुरा है, कोई शख्स उसको नहीं हटा सकता, फिर उसको हटाना नामुमकिन है। ठीक है, इसी तरह प्रेसिडेंट इज द रियल हेड, सेपरेशन ऑफ पावर्स थ्योरी है वहां पर, ये भी बता दिए। इसी तरह मिनिस्टर्स आर अकाउंटेबल टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट सदर होता है, सदर अपने लिए सेक्रेटरीज जो है वो तैयार कर देता है। वहां पर मिनिस्टर, जो मिनिस्ट्री सिस्टम है वहां पर इतना मिनिस्ट्री सिस्टम नहीं होता। तो वहां पर जो सदर साहब होते हैं वो अपने लिए मिनिस्टरों का एक झुंड तैयार कर लेता है या एक ग्रुप तैयार कर लेता है, और ये सारे लोग जो मिनिस्टर्स कहलाते हैं या सेक्रेटरीज कहलाते हैं, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द कांग्रेस, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, दे आर रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू द प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट के कहने से आते भी हैं, और प्रेसिडेंट के पसंद की या नापसंद की वजह से जा भी सकते हैं। प्रेसिडेंट उसको इलेक्ट भी करता है और प्रेसिडेंट उसको ख़त्म भी कर सकता है।
तो इस वजह से ये कहा भी जाता है कि ये भी एक किस्म की जो है प्रेसिडेंशियल डिक्टेटरशिप है कि प्रेसिडेंट ही सब कुछ कंट्रोल करता है, अपनी काबीना भी खुद बनाता है और उसको हटा भी सकता है। अच्छा, अब थोड़े से मेरिट्स की तरफ आएंगे। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में मेरिट्स, क्या मेरिट्स हैं? तो एक है मोर डेमोक्रेटिक, ये ज़्यादा डेमोक्रेटिक है। तमाम के तमाम पावर जो है प्रेसिडेंट कहाँ से आता है? तो लोग उसको इलेक्ट करते हैं। फिर डेमोक्रेटिक इसलिए भी है क्योंकि वहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर्स थ्योरी भी मौजूद है, चेक एंड बैलेंस की थ्योरी भी मौजूद है, और हर एक शख्स या हर एक इदारा अपने दायरे में रहकर काम करता है। साथ में स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, ये अलग एक मेरिट है कि ये ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि जब एक शख्स जब एक दफ़ा सदर बन गया, बस वो बन गया, वो फिर 5 साल तक जो है 4 साल तक या 5 साल तक मुख्तलिफ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ है, ठीक है। तो अमेरिका में 4 साल है, तो वो फिर 4 साल तक ही सदर रहेगा, कोई उसको फिर नहीं हटा सकता, ठीक है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का सिस्टम वहाँ पर नहीं है, और इवन इम्पीचमेंट होती है, लेकिन इम्पीचमेंट जो होती है वो इम्पीचमेंट भी आज तक इम्पीचमेंट के ज़रिए किसी सदर को नहीं भेजा गया या ख़त्म नहीं किया गया। अब सदर जो है डोनाल्ड ट्रंप का 2 दफ़ा इम्पीचमेंट हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। पीपल्स प्रेसिडेंट, इसका मतलब ये है कि सदर आता है तो लोग उसको इलेक्ट करते हैं, तो इसलिए हम उसको कहते हैं पीपल्स प्रेसिडेंट। मोर एफिशिएंट होता है क्योंकि तमाम के तमाम इख्तियारात जो है वो सदर के पास होते हैं, और सदर उसको आसानी से एक्सरसाइज भी कर सकता है। तो इस लिहाज से प्रॉम्प्ट एंड बोल्ड डिसीजन का एक करेक्टरिस्टिक भी आता है कि बस सदर जो कहता है बस वो हो जाता है, और जल्दी से। ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में थोड़ा सा जो पॉलिसीज़ वगैरह बनते हैं वो सुस्त रवि का शिकार होते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ तरीक़ों से बनते हैं, आहिस्ता आहिस्ता एक हाउस से फिर दूसरे हाउस से फिर डिबेट्स वगैरह होती हैं और चलती है ये कहानी महीनों तक। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा नहीं होता, प्रेसिडेंट के पास लामहदूद इख्तियारात होते हैं, ये बड़ा सूटेबल है। साथ में मल्टी पार्टी सिस्टम के लिए भी अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियाँ भी हों, पावर एक ही शख्स के पास ही आना है, और फिर पार्टियाँ जो है रहती हैं, लेकिन जो रियल पावर्स हैं वो सदर, इवन जो सदर होता है वो अपनी पार्टी से भी ज़्यादा पावरफुल रहता है, ठीक है। पार्टी भी फिर उसका कुछ नहीं कर सकती जब एक दफ़ा वो सदर बन जाए। और ज़रूर, अच्छा, तो ये तो हो गए मेरिट्स। अब आते हैं डीमेरिट्स की तरफ। तो डीमेरिट्स जो है वो है कि सदर की जो है ये किस्म की डिक्टेटरशिप होती हैं, तमाम के तमाम पावर्स आपने एक ही शख्स को दे दिए। फिर कन्फ्लिक्ट्स एंड डेडलॉक्स आते हैं, तो जब सारे डिपार्टमेंट्स अलहदा हो जाए, सेपरेट हो जाएं, और उसमें इंटीमेट रिलेशनशिप ना हो, तो एक शख्स दूसरे शख्स की बात नहीं मानेगा, और उसमें फिर कन्फ्लिक्ट्स आते हैं और डेडलॉक्स आते हैं। ख़ास तौर पर जब सदर एक पार्टी से हो और कांग्रेस में मेजॉरिटी किसी दूसरी पार्टी की हो, ठीक है, तो वहाँ पर फिर डेडलॉक्स आते हैं। एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, सदर जो है दैट इज़ नॉट अकाउंटेबल टू द कांग्रेस। इवन जो सदर का अपना मिनिस्टीरियल स्टाफ होता है या कैबिनेट होता है, दैट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द कांग्रेस, तो वहाँ पर लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी है। रिजिडिटी, इट इज़ हाईली रिजिड, और साथ में वीक फॉरेन पॉलिसी, सदर जो है फॉरेन पॉलिसी बनाने में आज़ाद नहीं है, वो कांग्रेस और सेनेट का मुख्ताज होता है, और इस लिहाज से हम कहते हैं कि सदर की जो फॉरेन पॉलिसी है वीक फॉरेन पॉलिसी होती है। एनी हाउ, ये तो चंद बातें हो गई। सेपरेशन ऑफ पावर्स एक थ्योरी है, जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशरी इंडिपेंडेंस है, उसको हम कल कर लेते हैं। और कल जो है हम ये पहला चैप्टर और पहला सिलेबस का पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो ख़त्म भी हो जाता है। साथ में यही चीज़ें फिर हम बाकी दुनिया के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उस पर अप्लाई करेंगे। अभी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं जी। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू मे आस्क नाउ। There's a presidentship through their foreign policy they are ruling the world, so how is foreign policy? नहीं नहीं, यूएस की बात तो अलग है, वो आपकी बात मैं मान लेता हूँ, हमजा मोहम्मद, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है रियल पावर्स भी है, हम थ्योरी को पढ़ लेते हैं,
ठीक है, कि थ्योरी में ऐसा होता है, क्योंकि सदर जो है वो जब भी कोई बड़ी अपॉइंटमेंट करता है, फॉरेन ट्रीटीज करता है, वो मुख्ताज होता है। चिक्स एंड बैलेंस सिस्टम जब पढ़ाऊंगा वहां पर मैं आपको टीच भी करूंगा कि जो सेनेट होता है उसका चिक मौजूद है सदर पर। तो सदर जो भी बड़े अपॉइंटमेंट करता है, चाहे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट करता है, चाहे जज अपॉइंट कर, सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट करता है, चाहे दूसरे ममालिक के साथ ये फॉरेन पॉलिसी बनाता है, ट्रीटीज करता है, तो उसके लिए जो है सेनेट की जो रजामंदी है ये लाजमी है। सही, तो इस वजह से इसको कहा गया कि सदर की प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो फॉरेन पॉलिसी होती हैं वो थोड़ी सी वीक फॉरेन पॉलिसी होती हैं। जब अमेरिका की बात आ जाए तो अमेरिका में चंद पॉलिसीज़ जो है फेल भी हो चुकी है, और चंद पॉलिसीज़ जो है आज तक इतनी ज़बरदस्त है कि उसकी वजह से ये पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं और ये सुपर पावर है। अच्छा, ये क्या, व्हाट डज इट मीन अ रूल ऑफ लॉ? अच्छा, ये फरहान नजीब तुमने मुझसे पहले भी पूछा था। इसका मतलब है रूल ऑफ लॉ रिक्वायर्स द गवर्नमेंट शुड बी सब्जेक्ट टू लॉ। इसका मतलब ये है कि लॉ जो है गवर्नमेंट पर भी अप्लाई होगा, एंड लॉ इज अबव द गवर्नमेंट, और लॉ जो है वो हुकूमत से ही ऊपर होगा। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये है कि कानून सबके लिए सेम होगा, हुकूमत के लिए भी और एक आम सिटीजन के भी। दूसरी बात, लॉ सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट, के हुकूमत कानून से ऊपर हो, मतलब अबव द लॉ हो, तो फिर हम इसको रूल बाय लॉ के ज़मरे में लाते हैं। और ये मैंने मिसाल चाइना की भी दी थी कि वहाँ पर जो लॉ है वो हुकूमत पर अप्लाई नहीं होती, कोई जज जो है जजमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट नहीं दे सकता, और ना ही अगर आप जाएं और हुकूमत के ख़िलाफ़ जाएं कि मेरे साथ हुकूमत ने ये ज़्यादती की है, तो कोई जज आपकी हेल्प नहीं कर सकता। वहाँ पर रूल बाय लॉ है, ठीक है। अगरचे कुछ लोग रूल ऑफ लॉ भी कहते हैं लेकिन असल में है नहीं। इन डिस्गाइज ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दे वांट टू ब्रिंग अ यूनिटरी स्टेट इन पाकिस्तान, व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, प्रेसिडेंशियल सिस्टम का ताल्लुक यूनिटरी स्टेट से नहीं है, या यूनिटरी सिस्टम अगर ऐसा है तो ले आए। अब ये बातें जो है फ़िलहाल हमारी समझ से तो बाहर है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल सिस्टम आएगा तो पार्टियां वीक हो जाएंगी, सदर के पास इख्तियारात होंगे, रियल इख्तियारात जो है सदर के पास, मतलब इमरान खान के पास आएंगे। लेकिन ये बातें सिर्फ किस्से कहानियाँ या पॉलिटिकल स्टंट्स के तौर पर लिए जाते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम 18वीं तरमीम के बाद इतना मजबूत हुआ है कि ये कहीं नहीं जाने वाला, आने वाले सालों में तो कहीं भी नहीं जाने वाला, ठीक है। तो इस पर बात करना या इसी क्वेश्चन को बार बार दोहराना, ये इससे बेहतर है कि कोई इंसान कोई अच्छी सी जो है रिसर्च कर ले इसी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान में, तो वो बेहतर है। पेपर में भी इसी चीज़ पर आप काम करें, और ये सिस्टम आपसे, इस पर क्वेश्चन भी आपसे नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो एग्जामिनर्स है उसको भी पता है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम आना पाकिस्तान में इतना अच्छा नहीं है। और पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल सिस्टम आए भी है, ठीक है, जो कि असल में थे डिक्टेटरशिप, लेकिन ख़ुद को जस्टिफाई करने के लिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम के फॉर्म में डाल दिया था, जो फेल हुआ, इतना कामयाब ना हो सका। व्हाट डज इट मीन अ रूल? ये तो हो गया ना, ये इजाज़ अहमद, परसीविंग इन द करंट डिबेट ओवर द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जी जी, तो यही डिबेट चलता है, बट आई डू नॉट एग्री विद द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हाँ, ये है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये भी एक बेस्ट है। पाकिस्तान चूँकि मल्टी कल्चरल, मल्टी पार्टी, मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है, तो उसके लिए यही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही सही है। ये एक रिस्पॉन्सिबल हुकूमत भी होती है, लोग भी जो है उसके साथ 2008 से लेकर 13 तक, 13 से फिर 18 से अभी 23 तक ये बात पहुंच जाएगी, और ये सही चल रहा है, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई खामियां हैं तो उसको सिर्फ रिफॉर्म करे, इस्लाहात है हो सकते हैं, लेकिन इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना ये बेवकूफ़ी है।
Sir, it is said presidency form based on wrong principles, one of merit. Please explain this. How is it wrong principles? ये तो तुम्हारे खैर किताब में नहीं लिखा गया कि रॉन्ग प्रिंसिपल्स पे हैं, लेकिन ये बात अमूमन लोग करते हैं कि इसमें डिक्टेटरशिप है, डिक्टेटोरियल होता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज़ मोर डिक्टेटोरियल, ठीक है, और यही है। और हाँ, रॉन्ग प्रिंसिपल्स इसको इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर्स आर इज नॉन एग्जिस्टेंट, ठीक है, क्योंकि कहीं भी दुनिया में आप जिधर भी जाएं कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर्स होते ही नहीं है। ये तो प्रिंसिपल इसका ये है कि देयर शुड बी इंडिपेंडेंस ऑफ द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और ये प्रिंसिपल रॉन्ग है क्योंकि कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है एग्जिस्ट ही नहीं करती। हनीन खान ये आपको बता रहा हूँ जी। अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो भी कर सकता है, नहीं तो आज का टॉपिक इतना ही है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप के लिए मैंने एक पोस्ट बनाया हुआ है, उसको अनाउंसमेंट में भी डाला है, तो वहाँ पर आप लोग अपना क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं वहाँ पर आपको रिटर्न में आंसर करूँगा। सो हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्व्स, सी यू टुमारो।